دوستان محترم، آج میں آپ کے سامنے ماہ رجب المرجب کی عظمت و شان اور اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ماہ رجب المرجب یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب المرجب کی حرمت یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا فرمایا۔ فیہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں کے اندر ماہ رجب بھی ہے۔ دوستان محترم، ماہ رجب المرجب یہ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام ہے، اور ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رجب میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو ماہ رجب کا چاند دیکھ کر دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ دوستان محترم، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس دعا کو ماہ رجب کا چاند دے کر ضرور پڑھ لیا کرے۔ دعا یہ ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دوستان محترم، اب آئیے ماہ رجب کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے حوالے سے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ رجب کے اللہ کا مہینہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے، اس میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے قرب کی دولت سے نوازا، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء کرام علیہم السلام پر ہے۔ یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے میری فضیلت تمام انبیاء کرام پر ہے، ایسے ہی ماہ رجب کی فضیلت 12 مہینوں کے اندر ہے۔ دوستان محترم، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب 2 گنا کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص رجب کے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستان محترم، اس ماہ مبارک کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو آپ سنیں۔ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ جانتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رجب رکھا گیا۔ مسلمانوں، ماہ رجب کے کچھ اہم واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تھے، اور کشتی کا آغاز ہوا تھا اسی مہینے میں۔ سب سے بڑا تحفہ نماز کی شکل کا، یعنی 5 گانا نماز کا تحفہ اللہ نے ہمیں ماہ رجب کے مہینے میں عطا فرمایا۔ اسی مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اسی مہینے میں غزوہ تبوک ہوا، اسی ماہ کی 27ویں تاریخ کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ
वसल्लम को सफर मेराज से मुशर्रफ किया गया। अब आप देखें माह रजब के रोजे की फजीलत के बारे में हमारे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रजब का एक रोजा रखा उसके लिए अल्लाह ताला 3 चीजें अपने जिम्मे करम पर ले लिया है। उसमें से पहली चीज कि उसके गुज़िश्ता सारे गुनाहों की माफी, दूसरी चीज बकिया उम्र में उसके गुनाहों की हिफाजत, तीसरी चीज कयामत के दिन प्यास से अमान। ये 3 चीजें अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे करम पर ले लिया है। जो माह रजब के रोजे रखेगा, जो माह रजब का रोजा रखेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाएगा, अल्लाह कयामत के दिन उसको प्यास से अमान अता फरमाएगा और अल्लाह ताला आइंदा गुनाहों से उसकी हिफाजत फरमाएगा। तो एक ज़ईफुल उम्र शख्स खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरे महीने के रोजा नहीं रख सकता। तो हमारे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब की पहली तारीख का रोजा रखो, इसलिए कि उसमें नेकियां 10 गुना हो जाती है, और 15वीं तारीख का रोजा रखो, इस आखिरी दिन का रोजा रखो, तुमको पूरे महीने के रोजे रखने वाले के बराबर सवाब अता किया जाएगा। एक और मकाम पर हमारे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रजब के पहले जुमा की शब उससे गाफिल न होना। वो ऐसी रात है, वो ऐसी अजमत वाली रात है कि जिसको मलाइका बड़ी रगबत वाली रात कहते हैं। अल्लाहु अकबर। उस रात का जब तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो जमीन और आसमान के फरिश्ते काबे और उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व ताला उनसे इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों मांगो जो कुछ तुम मुझसे मांगना चाहो, मांगो। फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह हमारी बस यही ख्वाहिश है कि तू माह रजब के रोजे रखने वाले की मगफिरत फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, मैंने उन्हें माफ कर दिया। दोस्तानी मुहतरम, ये है माह रजब की रोजों की फजीलत कि जो बंदा माह रजब के रोजा रखता है तो फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जाओ मैंने उन सबको माफ कर दिया। दोस्तानी मुहतरम, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हमारे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है। जो कोई माह रजब के एक दिन का भी रोजा रखे, अल्लाह तबारक व ताला उसे उस नहर के पानी से सैराब फरमाएगा। दोस्तान मुहतरम, हजरत सईद सामी रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हमारे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रजब के महीने में एक रोजा रखा, उसका वो रोजा सवाब में एक महीने के रोजे के बराबर है। जिसने रजब के 7 दिनों के रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देगा, और जो रजब के 8 दिनों के रोजे रखेगा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जो रजब के 10 दिनों के रोजे रखेगा उसे आसमान से एक मुनादी आवाज देगा कि अल्लाह ताला ने तुझे बख्श दिया है, अब तू नए सिरे से अमल कर, और जो ज्यादा रखेगा उसकी अजर सवाब में ज्यादा इजाफा फरमाएगा। एक और हदीस माह रजब के हवाले से समाअत फरमाए, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आप कहते हैं कि जो कोई 27वीं रजब को रोजा रखेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए 60 महीनों के रोजों का सवाब लिखेगा। और यही वो महीना है, यही वो दिन है कि जिसमें हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर आए थे। दोस्तान मुहतरम, ये सारे काम नफल है, अल्लाह तौफीक दे जरूर कर ले, इनकी वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ फरमाएगा।
बरकतें भी अता फरमाएगा, नेकियों में इजाफा भी फरमाएगा, कयामत के दिन प्यास से अमान अता फरमाएगा। गफलत में जिंदगी गुजारने से बेहतर है इताअत में जिंदगी गुजारी जाए। दोस्ताने मुहतरम, माह रजब में अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिगफार करो, खूब मगफिरत मांगो कि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगफिरत के हवाले से रब तबारक व तआला की तरफ से मुजदे जा फिजा के हवाले से फरमाया है कि तौबा इस्तिगफार भी करे, मगफिरत की भीख भी मांगे। और इस महीने का नाम ताजीम की वजह से रखा गया है तो इस महीने की ताजीम भी करे। तो जो शख्स ये चाहे कि कयामत के दिन उसका नामाए आमाल उसको खुश कर दे तो उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करना चाहिए। और एक दुआ के अंदर हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 महीनों का जिक्र किया है, रजब, शाबान, रमजान। और अब आप देखें इन तीनों महीनों में एक खास रात आती है। रजब में शबे मेरात, शाबान में शबे बरात, रमजान में शबे कद्र। तो पूरे साल की अजीब रातें हैं जो इन तीनों महीनों में आती है। और हमारे मुफस्सिरीन ने किराम फरमाते हैं कि रजब ये बीज डालने का महीना है, शाबान पानी देने का महीना है और रमजान फल काटने का महीना है। तो दोस्तान मुहतरम, माह रजब का अदब एहतराम करें, माह रजब में खूब नेकियां करें, तौबा व इस्तिगफार करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को माह रजब की कद्र करने और उसमें नेक काम करने, गुनाहों से बचने की नेक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।